Hello students, in my previous class we learnt about the units of permittivity and charge. So in SI unit the unit of charge was coulomb, and in CGS unit the unit of charge was stat coulomb. So today we will learn about the relation between coulomb and stat coulomb. Relation between coulomb and stat coulomb. So first, in SI unit, if both the charge are same, that is Q1 is equal to Q2, तो charge रो unit केते आस्थिला SI रे 1 coulomb. Okay, let 1 coulomb रो value हला, let 1 coulomb equal to x stat coulomb. So then force between two charged bodies, that is F equal to, or Coulomb's force is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. So force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, value केते 9 into 10 to the power 9. If it is in SI unit, then both Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb we have taken. So by using that values here, we will get Q1 1 into Q2 1 by R square. So here we have taken R is equal to, distance of separation is equal to 1 meter. So 1 square. Both the charges here are separated by 1 meter distance. So the force becomes 9 into 10 to the power 9, 1 the value of Q1 into 1 the value of Q2 by 1 square the value of R. So that implies force becomes 9 into 10 to the power 9, 1 into 1 by 1 square becomes 1. So here force is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. This is our equation 1. Again, in CGS unit. In CGS unit, we will find the value of force. So SI unit रे हमें force रो value, force of interaction between two charged is equal to 9 into 10 to the power 9. So again in CGS unit, Coulomb's force F equal to beta into Q1 Q2 by R square, that equal to beta. For in CGS unit beta is equal to 1. So here 1 into Q1 into Q2. अच्छा आमे CGS यूनिट नहीं चे तो चार्ज एठी केते नबा स्टार्ट कुलम नबा, तो आमे एठी चार्ज को नहीं चे x स्टार्ट कुलम. So Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb, and again 1 coulomb is equal to x start coulomb. So here CGS unit रे Q1 is equal to Q2 will be same, that is x start coulomb. So एठी आमे Q1 Q2 जगह x into x put करवा by R square. R रो जगह रे एठी R आमे नहीं चे 1 मीटर, तो CGS यूनिट को कन्वर्ट करी देले R रो वैल्यू केते 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. R को नहीं जाइए आमे एठी R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, सो R स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. So that force is equal to
F equal to 1 into x by 100 centimeter square केते हला x into x is x square by 100 centimeter square 10,000 or we can write x square by 10 to the power 4 force unit in CGS system is dyne. Okay, so आमे जदि या को न्यूटन को कन्वर्ट करिया को चाहिबा ए वैल्यू को डाइन को आमे न्यूटन को कन्वर्ट करिया देन फोर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 न्यूटन केते डाइन आमे जानि छे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन so 1 डाइन इज 1 by 10 to the power 5 न्यूटन so आमे डाइन को कन्वर्ट करूचे न्यूटन रे माने आमे एठी x स्क्वायर by 10 to the power 4 into डाइन प्लेस रे 1 by 10 to the power 5 न्यूटन लिखिबा so that implies force is equal to केते हला वैल्यू को सॉल्व करले x स्क्वायर by 10 to the power 4 into 10 to the power 5 is 10 to the power 9 न्यूटन. This is our equation 2. So एठी आसला फोर्स रो वैल्यू x स्क्वायर by 10 to the power 9 न्यूटन. तो देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 1 रे लेफ्ट साइड रे फोर्स अछि फोर्स रो वैल्यू एतिक पाइजे इक्वेशन 2 रे सेम फोर्स रो वैल्यू एतिक पाइजे तो जदि लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन 1 and 2 are same then right side will be equal. So from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 or comparing equation 1 and 2 we will get कौन हमें पाउछे we get x square by 10 to the power 9 न्यूटन जति की 9 into 10 to the power 9 न्यूटन सेति so आमे एठी लिखिले x square by 10 to the power 9 is equal to 9 into 10 to the power 9 both are in same unit newton. So here x square is equal to 9 into 10 to the power 9 टर्म को आमे एठी नेकी मल्टीप्लिकेशन करूचे 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 तो 10 to the power 9 into 10 to the power 9 केते हला इक्वेशन 9 into 10 to the power 9 plus 9 is 18. So x square is equal to 9 into 10 to the power 18. So x केते होची x is equal to root over of this thing तो 9 root over हला 3 10 to the power 18 रो root over हला 10 to the power 9. So x को हमें कौन नहीं थिले x was the value of charge in stat coulomb. So 1 coulomb हमें नहीं थिले x stat coulomb बर्तमान x रो वैल्यू केते पाइले 3 into 10 to the power 9 तो एबे हमें एठी लिखिबा 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. So this is the relationship between coulomb and stat coulomb. The value of charge SI सहित CGS unit. तो एटा को हमें नहीं जे stat coulomb कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU. एबे मैग्नेटिज्म रे गोटे वैल्यू यूज है 1 coulomb आ गोटे वैल्यू अछि 1 coulomb SI यूनिट रे चार्ज रो वैल्यू यूनिट is equal to 1 by 10 ab coulomb. और ये ab coulomb हला unit of charge in CGS system in electromagnetic
यूनिट तो ये आप कूलम रो वैल्यूटी आम आगु को मैग्नेटिज्म रे यूज करथा तो बर्तमान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे सबुठी प्राय स्टार्ट कूलम रो वैल्यू ही यूज होबो तो सीजीएस यूनिट रे चार्ज रो दुईटा टाइप रो यूनिट था सेटा हला स्टार्ट कूलम एंड आप कूलम एवं एसआई यूनिट रे ऑलवेज इट इज कूलम ओके सो this was the relationship between coulomb and start coulomb. Next we will learn about Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. आगरो आमे पढ़ी सारचे Coulomb's law in scalar form. तो scalar form रे कौन कुआ जाइतला when two charges are separated or when two charge body of charge q1 and q2 are separated by distance r then the force of interaction between two charges is equal to or force is directly proportional to the product of magnitude of their charges q1 into q2 and inversely proportional to the square of distance between them. So according to scalar form force is proportional to q1 q2 by r square or force is equal to some constant. This is also known as proportionality constant or Coulomb's constant beta into q1 into q2 by r square. Okay, so generally आमे air medium पाई नौतिले f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. तो बर्तमान Coulomb's law रे एठी आमे जो फोर्स फाइंड आउट करूचे ए फोर्स रो आमे कोन नौचे मैग्नीट्यूड केते परिमाण केते से Coulomb's law हमको दे दे थाए मैग्नीट्यूड दुईटी चार्ज बॉडी भितरे थिबा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रो परिमाण केते माने जणे आउ जण को ऊपर केते फोर्स एक्सपीरियंस करंती पकांती सेही मैग्नीट्यूड ता हमें पाई थांती किंतु एठी हमें डायरेक्शन विषय रे फोर्स रो किछि कहूने बट वेक्टर फॉर्म रे हमें देखिबा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस रो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विषय रे हम एठी पढु छ तो वर्तमान देखियो वेक्टर फॉर्म रे Coulomb's law. सो फर्स्ट आम देखु केस 1 रे in case of case 1 the product of two charges that is q1 into q2 is greater than 0 जदि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जो वैल्यूटा आसला सेटा ग्रेटर देन 0 होची दैट मीन्स दीटा चार्ज रो प्रोडक्ट निश्चित भावे कोन हेतबो पॉजिटिव हेतबो मोर देन 0 अर्थ होची पॉजिटिव वैल्यू आस्तबो तो पॉजिटिव वैल्यू माने एठी हमें दुईटी याक चार्ज को जदि सेम नेबा सेम साइन रो नबा दैट इज आइदर प्लस और माइनस प्लस इंटू प्लस होची प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो एठी हमें जदि सेम और सिमिलर चार्ज नबा ताहाले प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज q1 into q2 will be greater than 0 so here a case रे कोन होची when both the charges are of similar nature both the charges are of similar nature so देखियो वर्तमान let us consider two charge body of charge q1 and q2 and दुईटी याक चार्ज बॉडी रो चार्ज होची similar that means दुईटी याक चार्ज are either positive और दुईटी याक चार्ज बॉडी रो चार्ज are negative तो एठी कोन होबो जते बेले दुईटी चार्ज बॉडी को आमे किछि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रे दुईटी पॉइंट चार्ज को पुट करंती ऑफ सिमिलर नेचर देन व्हाट विल दे डू दे विल रिपेल इच अदर तो वर्तमान मन करो q1 q2 को
रिपेल करिवो तो को डायरेक्शन रे रिपेल करिवो ए डायरेक्शन रे तो यार आमे ना दबा एठी जो फोर्स रे रिपेल कला दिस रिपल्सन फोर्स इज F21 that is force on charge 2 due to charge 1 or force on Q2 due to Q1 is F21 से भलिया Q2 मध्य Q1 को रिपेल करूची को डायरेक्शन रे ए डायरेक्शन रे रिपेल करिवो एठी यार ना हला फोर्स ऑन चार्ज Q1 जहाँ ऊपर फोर्स पड़ছে तार नेम टी आगो लिखा हो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 सो इट इज F12 तो यार आमे मैग्नीट्यूड सह डायरेक्शन देखोचे तो वर्तमान डायरेक्शन देखोथबारो एटा आमे वेक्टर फॉर्म रे डायरेक्शन सह आमे एक्सप्रेस करिया फोर्स टी को तो वर्तमान एठी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नोचे Q1 रो Q2 को डिस्टेंस को आमे एठी नोचे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर द्वारा मेंशन करूचे तो Q1 रो Q2 पर्यंत डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आमे नेले R12 वेक्टर तो एटा जो जदि गोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होची तो R12 वेक्टर रो गोटे डायरेक्शन देखिया पई गोटे यूनिट वेक्टर रोची दैट इज R12 कैप एवं तार डायरेक्शन होची सेम as the direction of displacement vector that is R12 ए डायरेक्शन वर्तमान Q2 रु Q1 को जीवा पाई कि डिस्टेंस टी को आमे Q2 टू Q1 पर्यंत नौचे को डायरेक्शन रे ए डायरेक्शन रे या को आमे ना देले Q2 रु Q1 हला R21 is the displacement vector and यार यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होची R21 कैप जोटा कि सेम as the direction of R21 ओके सो एठी हमें शेयर नै जिबा so here F12 is force on Q1 due to Q2 F21 is force on Q2 due to Q1 R12 vector is displacement from charge कोट को पर्यंत डिस्प्लेसमेंट होचे R1 टू Q1 रो Q2 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2 R21 वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2 to Q1 R12 cap is unit vector को डायरेक्शन रे R12 cap हला R12 displacement vector रो unit vector तार डायरेक्शन सेम as the displacement vector R12 so R12 cap is unit vector along R12 vector से बोले R21 unit vector is unit vector along R21 displacement vector okay so वर्तमान हमें find out करिया the magnitude and the force value force of interaction F12 and F21 ए दुईटी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आमको किए देते कुलम्स लॉ देते बर्तमान आम फर्स्ट ए केस रे देख गोटे जिनस जिते बड़े आम दुईटी चार्ज को सिमिलर नौचे इन नेचर फॉर सिमिलर चार्जेस F12 रो डायरेक्शन जहाँ F12 रो डायरेक्शन जहाँ R21 रो डायरेक्शन सेटा
F21 रो डायरेक्शन जो आड़े F21 रो डायरेक्शन जो आड़े R12 रो डायरेक्शन साड़े बुझेला। तो एटा या सहित अपोजिट रोचे किंतु आमे जते बेले डिसिमिलर चार्जेस नोचे तो सेते बेले फोर्स F12 रो डायरेक्शन R12 सहित समान, F21 रो डायरेक्शन R21 सहित सेम होबो। देखिबा आमे आगो को केस 2 रे। तो वर्तमान फॉर केस 1 आमे एबे फाइंड आउट करिया द वैल्यू ऑफ F फोर्सन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज F12। तो आमे पढ़ी आगु कूलम्स लॉ अनुसार F12 इज इक्वल टू केते बीटा इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आर जगार आम कौन नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहींचे। तो F12 रो डायरेक्शन रे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छी देख आरो मार्क F12 डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टी होची R21। तो वर्तमान एठी आमे लिखिबा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स रो सेम डायरेक्शन रे थिबो आमे सेही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेही फोर्स पई नेबा। तो वर्तमान F12 पई बीटा इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R21 स्क्वायर। तो एठी जो R21 वेक्टर नोचे आमे यारो मैग्नीट्यूड नोचे। सो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर इंटू R21 कैप इंटू R21 कैप। तो ये आमे वेक्टर टी को तार मैग्नीट्यूड एवं यूनिट वेक्टर माध्यम रे प्रकाश कले। ओके सो वेयर R21 वेक्टर रो मूल्य जेतिकी इज इक्वल टू R12 रो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो वैल्यू भी सेतिकी। देखो वर्तमान एठू एतिकी डिस्टेंस एठू एपर्यंत जिबा जहा एठू एतिकी डिस्टेंस एठू एपर्यंत आसीबा सेया। तो वर्तमान R12 रो वैल्यू R21 रो वैल्यू दुईटी याकर मैग्नीट्यूड टा लेंथ टा सेम रहउची। तो सेति पय आमे नै गले एठी R21 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर को आमे एठी सिंपली डिस्टेंस R बोली नै जाइछे। सो जते बेले आमे R21 जगह रे R यूज करबा ए इक्वेशन टी आमे पाउचे F12 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर जगह आमे केते यूज कले R यूज कले। सो इट इज R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर को आमे केमती लिखंती ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आमे एटा आगुरु फर्स्ट ईयर रे पढ़ीचे। तो वर्तमान R21 कैप ए फोर्स को डायरेक्शन किए देखिबो तार यूनिट वेक्टर देखोची। तो सेति पई के आमे एठी मल्टीप्लाई करचे कोन ओटे यूनिट वेक्टर R21 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सहित। तो वर्तमान R21 कैप को आमे केमती लिखिबा R21 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो सेही भली एठी आमे लिखिले R21 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ओके सो फोर्स 12 इज इक्वल टू बीटा अच्छा R21 रो वैल्यू केते अगेन R। तो एठी भी आमे R यूज करबा। तो इक्वेशन रे एठी R स्क्वायर अछि R21 रो मूल्य जगह रे आमे R पुट कले टोटल इक्वेशन केते आसिला Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू एटा हला R। तो केते हला R क्यूब इंटू केते रहिछि ऊपर R21 वेक्टर। ओके तो दिस इज कहार वैल्यू हमरो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q1 चार्ज Q2 चार्ज ऊपर पकौथुआ फोर्स रो परिमाण आमे जानि देले बीटा Q1 इंटू Q2 बाई R क्यूब इंटू R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेही भली आमे भी फाइंड आउट कले पाइबा सिमिलरली
F21 रो वैल्यू मध्य आमे पाइबा बीटा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R एटी यूनिट वेक्टर टे किए हबो एटी यूनिट वेक्टर हेबा कथा F21 डायरेक्शन रे यूनिट वेक्टर डायग्राम देखो F21 रो डायरेक्शन रे यूनिट वेक्टर किए अछि R12 तो R12 रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर हेबा कथा एटी R12 रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर इंटू R12 कैप जेमती इक्वेशन टी लिखा हला सेमती हमें लिखिबा F21 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर थिला एठी केते हबो R12 रो स्क्वायर इंटू ताको डायरेक्शन किए देखो जे फोर्स को R12 यूनिट वेक्टर so F21 is equal to beta Q1 Q2 by एठी मु R21 is equal to R12 रो वैल्यू R नीचे तो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर जगह एठी लिखली मु R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर तो सेमती R12 यूनिट वेक्टर को ए फॉर्म रे मु एक्सप्रेस करिवे तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मॉड ए सेथिपाई आमे R12 को सेमती लिखिले आमे लिखिबा इक्वेशन F21 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा इंटू Q1 Q2 by R square into R12 vector by mod R12 displacement vector तो R12 जगह अगेन आमे केते यूज करबा R12 रो वैल्यू आमे R नीचे तो ए प्लेस रे जदी आमे R पुट करबा तो R into R हेबा R स्क्वायर ऊपर अछि R12 so force on Q2 charge due to Q1 charges beta Q1 Q2 by RQ into R12 वेक्टर तो वर्तमान आमे Q1 Q2 Q1 चार्ज Q2 चार्ज ऊपर केते इक्वेशन 2 सो एठी आमे Q1 Q2 ऊपर जो फोर्स पकोछि F21 तारो मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन फाइंड आउट कर देले Q2 Q1 ऊपर जो फोर्स पकेला दैट इज F12 तारो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करले एथरो हमें देखिबा गोटे जिंस जे देखो एठी मैग्नीट्यूड दुईटी एक केस रे सेम आछि दैट इज बीटा Q1 Q2 by RQ एठी भी आछि बीटा Q1 Q2 by RQ किंतु सेमानकर डायरेक्शन कोन होछि गोटे हला R12 रो डायरेक्शन एठी अछि R12 सॉरी एठी अछि R21 एठी डिस्प्लेसमेंट होछि R12 सो R12 रो डायरेक्शन देखो and R21 रो डायरेक्शन both are opposite to each other but the magnitude of both the forces are same that is magnitude के beta Q1 Q2 by RQ तो magnitude same and direction are opposite तो एथरो हमें कौन प्रूफ कले since R12 रो direction is opposite that means हमें एटी opposite sign पे ओडे माइनस यूज करिया R12 is opposite to R21 displacement vector R12 is opposite in direction to R21 so आमे इक्वेशन 2 को लिखि परिबा F21 is equal to beta Q1 Q2 by RQ into एटी R12 जगह रे आमे केते लिखि परिबा माइनस ऑफ R21 R12 is equal to minus R21 आमे नेले तो ए इक्वेशन रे इक्वेशन 2 रे R12 प्लस रे आमे लिखिबा माइनस ऑफ R21 वेक्टर सो F21 रो वैल्यू केते आसला F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बीटा Q1 Q2 by RQ into R2 इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 1 थिला
F12 रो वैल्यू केते थिला बीटा Q1 Q2 by RQ into R21 एठी F21 रो वैल्यू केते आसला F12 एतिकी थिला F21 केते आछि माइनस बीटा Q1 Q2 by RQ into R21 तो वैल्यू दीटा को सेम किंतु एठी गोटे माइनस साइन अछि एथरो हमें कोन जानले दुईटी एक फोर्स रो मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर कोन डायरेक्शन आर opposite to each other. This is equation 3. So comparing equation 1 and equation 3 we will get हमें कौन conclusion पाउचे we get F12 is equal to minus F2. So in vector form हमें कंक्लूड कले जे जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन Q1 Q2 परस्पर प्रति पकाउछंती यदि Q1 1 कूलम हुए Q2 50 कूलम हुए तो सेमानकर मैग्नीट्यूड किसी फरक पड़ुनी किंतु सेमाने परस्पर को सेम फोर्स रे कौन करेंगे रिपेल करेंगे एंड कोआडे अपोजिट डायरेक्शन रे तो बोथ द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन or repulsion force F12 and F21 here are equal in magnitude but opposite in direction equal and opposite of each other. So एठी हमें कौन पढ़ी गोटे कूलम्स सॉरी हमें एठी न्यूटन्स थर्ड रूल रे कौन पढ़ी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सो से दृष्टि एठी हमें देखिले एठी दुईटी की फोर्स इक्वल और ऑपोजिट हेतुवारु दिस कैन बी ट्रीटेड एज एटा को लॉ को सैटिस्फाई कला न्यूटन्स थर्ड लॉ अनुसार कौन कौची प्रति एक्शन रो इक्वल अपोजिट रिएक्शन रहिबो तेनो एटी एक्शन रिएक्शन को हमें फोर्स नौचे तो ये दुईटी जो फोर्स पाइले F12 एवं F21 ये दुईटी को दिस कैन बी ट्रीटेड एज these forces can be treated as a pair of action and reaction one mark question पड़िबो न्यूटन्स थर्ड लॉ कूलम्स लॉ को लॉ को सैटिस्फाई करछ न्यूटन्स थर्ड लॉ को सही हिसाब रे कोन कहूचे एठी जो कूलम्स फोर्स हमें पाउचे दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर हेतिवारो दीज आर कंसीडर्ड एज अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ओके तो एठी हमें केस 1 पढ़िले फॉर सिमिलर चार्जेस से भलिया हमें देखिबा केस 2 एठी हमें कोन देखुचे डिसिमिलर चार्जेस दैट मीन्स गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हेतु तो सेमानकर मैग्नीट्यूड जदि आम गुणिले कि प्लस इंटू माइनस केते आसे माइनस नेगेटिव तो Q1 इंटू Q2 रो मैग्नीट्यूड ऑलवेज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 तो एटा कौन इंडिकेट करछि व्हेन द चार्जेस आर ऑफ different nature और dissimilar nature opposite charge नौजे जेतबेले तो एई केस रे कोन कहितली म तुमको मन कर Q1 गोटे चार्ज हो एंड Q2 आ गोटे चार्ज हो तो वर्तमान सेमान को भितर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किछि डिस्टेंस रे हमें नै जाइछे एठी जेतबेले वेक्टर फॉर्म नौचे तो वर्तमान Q1 एंड Q2 गोटे प्लस गोटे माइनस जदि भाबा एठी कोन डिसिमिलर चार्ज परस्पर को कोन करिवे अट्रैक्ट करिवे सेम चार्ज रिपेल करंती ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करंती तो Q1 Q2 को जो फोर्स पकेबो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकेबो फोर्स ऑन Q1 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज ए अट्रैक्टिव फोर्स तार डायरेक्शन कोड आसीबो याडे F फोर्स ऑन Q2 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 F21 Q2 भी Q1 को जो फोर्स रे अट्रैक्ट करिवो तार डायरेक्शन कोड हबो ए डायरेक्शन रे दैट इज F12 ओके एठी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें कोन नै छे
Q1 ରୁ Q2 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R12 अगेन सेम डायरेक्शन रे रहला तार यूनिट वेक्टर R12 कैप ओके। तो बर्तमान देख फोर्स 12 रो डायरेक्शन जुआडे R12 रो डायरेक्शन सियाडे तेणु आम ये फोर्स रो वैल्यू फोर्स F12 फाइंड आउट कला बेले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोटा यूज करूचे सेम डायरेक्शन रे तार जोड़ा थिबो दैट इज R12 F21 पई कि कोन यूज करिया Q2 रु Q1 पर्यंत डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज R21 वेक्टर रो यूनिट वेक्टर R21 क्या तार भी डायरेक्शन सेम आज R21 ओके। तो एठी हमें फोर्स देखिवा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 यार ई डायरेक्शन रे काई हैला काहे कि ना चार्ज Q2 टा ताको याड को ही निज आड को ही अट्रैक्ट करूची तो ई डायरेक्शन हैला Q1 Q2 चार्ज को ता निज आड को अट्रैक्ट करिवो तो एठी कोन होची फोर्स कहा ऊपर पकोची चार्ज 2 ऊपर F2 ऑन बाय के पकोची फर्स्ट चार्ज Q1 तो एठी हैला F21 रो डायरेक्शन Q1 आड को ओके। तो वर्तमान देखो F12 रो डायरेक्शन का सहित समान R12 सहित F21 रो डायरेक्शन R21 सहित समान तो सही सब यूनिट वेक्टर जो माने सेम सेम डायरेक्शन अछंते तांको हमें एठी यूज करछे। तो F12 रो वैल्यू बीटा Q1 Q2 बाय केते हबो R को वेक्टर नबा R12 वेक्टर तो R12 इज इक्वल टू R21 वैल्यू हमें केते नेचे R नेचे तो एठी हैला R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर सो बीटा Q1 Q2 बाय सेम जहाँ एठी हेतला एटा सेम हबो एटा R क्यूब हे जो R12 वेक्टर पई हमें केते यूज करते हंदी R12 वेक्टर जगह रे R12 यूनिट वेक्टर जगह रे R12 वेक्टर बाय R R रो मूल्य कहीं R माने कोन R12 मैग्नीट्यूड R12 मैग्नीट्यूड पई R हैला तो R इंटू R स्क्वायर एठी R क्यूब हैला एठी रहउचे R12 वेक्टर दैट आसला F12 रो वैल्यू एंड सिमिलरली F21 रो भी वैल्यू हमें पाइबा यार जस्ट अपोजिट बीटा Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर सो एठी देखो R12 वेक्टर इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू R21 वेक्टर R12 R21 रो अपोजिट डायरेक्शन रे हेतिबारु हमें फोर्स 21 जगह रे हमें पुट करि परिबा बीटा Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू एटा केते होबा R21 अपोजिट मीन्स माइनस R12 वी कैन राइट हियर तो माइनस टा हमें जेतले फ्रंट को नोचे ए टर्मटा नेगेटिव आसला ओके। तो फोर्स 21 इज इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर जोटा कि कहा सहित सेम हैला मैग्नीट्यूड रे F21 is same in magnitude as that of F12 but they have a minus sign here तो माइनस साइन कौन यूज कर कहूची एठी both force are equal and opposite to each other so here also F12 is equal to minus F21 so एठी भी सही सेम केस 1 और केस 2 रे आमे जो मैग्नीट्यूड और जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन सिमिलर चार्ज होंतु कि डिसिमिलर चार्ज होंतु सेमान को भीतर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रहउची एथरो आमे प्रूफ कले जे दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and they are always equal in magnitude and what opposite in direction to each other okay so they are also considered as a pair of action and reaction force so this was the Coulomb's law in vector form आज रो वीडियो को पिले माने तुम्हें केयरफुली देखो रिपीटेडली देखो तारो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करो वीडियोटी रिपीटेडली देखि सारला परे मध्ये जदि किछि डाउट आछी ताहले मते पचारो थैंक यू।